हेलो एवरीवन, दिस इज अंजन बैक विद यू। तो आज अपन करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर सॉल्विंग फॉर टर्म 1। जैसे कि आप लोगों को पता है सीरीज चल रही है। ओके, तो दिस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे अपन। दो टाइप में आपकी मैथमेटिक्स डिवाइडेड है, बेसिक और स्टैंडर्ड। सो बेसिक का पेपर अपन सॉल्व कर चुके हैं एक, तो बेसिक जो बच्चे ले रहे हैं वो बेसिक का करें। स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों करें, ताकि उनको इजी क्वेश्चंस का भी आइडिया रहेगा और थोड़ी जो डिफिकल्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आएंगे ऐसे तो इजी हैं लेकिन उनका भी आइडिया रहेगा। तो अपन को दोनों चीज़ों पे मेन फोकस करके चलना है स्टैंडर्ड वालों को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स प्लेन। आपका जनरल गाइडेंस, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, टाइम अलाउड इज 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स इज 40। जनरल इंस्ट्रक्शन तीन सेक्शन है, देयर आर थ्री सेक्शंस इन दिस पेपर, A, B and C. Section A contains 20 question and from which you have to attempt any 16. Similarly, section B contains 20 questions from which you have to attempt any 16. And section C is case study based questions. So it contains 10 questions, 5 questions per case study. So you have to attempt any 8 questions there. So there is no negative marking overall in this paper. Let's begin with section A. There are 20 questions of 1 mark each. Any 16 questions are to be attempted. So let's begin. The ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime numbers is. So first of all we need to find out what are least composite or uh, least composite and least prime number. Least prime number we have 2 and least composite number which we have is 4. So the ratio of LCM and HCF of, so let's find out LCM of 4 and 2. It is 4 and HCF of 4 and 2 is 2. ठीक है, so now क्या करेंगे, 4 by 2, ratio is 2 is to 1, hence B is my correct answer. Now the value of K for which the lines coincide, for coincide, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. Now 5 by 15 is equals to 7 by 21 is equals to 3 by K. Balance out 1 by 3, 1 by 3. So K is equals to 3 into 3, 9. Hence A is my correct answer. Next, a girl walks 200 meter east. So a girl moves 200 meter east. Okay, and 150 meter north. 150 meter north. This is east. This is north. And we need to find out the distance of girl from starting point. Hence we need to find out D. This will be 90 degree. So D square is equals to 200 whole square plus 15, 150 whole square. So this means 0 0 0 0 and this will be 4 means 40,000 and this will be 225 0 0. Overall it will be 622500. Now D's value will be root of this and this is whole square of 250. This is whole square of 250. So our answer will be option B. Next, the length of diagonals of rhombus. Let's say this is our rhombus A, B, C and D, and AC and BC are my diagonals and they will be perpendicular. Length is given to us 24 centimeter. Then the length of altitude we need to find. So area, first of all we will find out the side. This will be 12 and this will be 16. So we need to find out this side D. So D will be root of 144 plus 16 का square 156. Okay, is it 156 or 256? 256, yeah. So this will be 400, so D will be 20. Now half into 24 into 32 will be its area of rhombus. Now both
we will find out now. Area of rhombus will be also given by parallelogram theorem. So which I can say it will be base into altitude. Base into altitude. This will be 12 into 32. Base I found out to be 20. Altitude h. H is equals to 6 into 32 divided by 10. 2 से 2 बैलेंस कर दिया मैंने. Now answer will be 6 into 2, it will be 8. So something with 0.8. 6 2 ja, okay, not 8, 6 2 ja 12, my fault, and 192 divided by 10. Hence answer will be D, 19.2 centimeter. Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? Now देखो, अगर दो कॉइन टॉस हुए तो एक हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया. पहले में हेड, दूसरे में टेल्स, दूसरे में टेल, तीसरे में पहले में टेल, दूसरे में भी टेल, पहले में टेल और दूसरे में हेड. सो दिस विल बी माय 4 केसेस जो कि बनेंगे. नाउ अब एट मोस्ट वन हेड चाहिए, तो वन हेड किस किस में है अपना, वन हेड किस किस में है, टी एच एच टी एच एच. ठीक है, 3 केसेस है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4. Hence answer will be A. Thank you. Let's move on to next one. Triangle ABC and triangle PQR are similar. Okay, if they are similar, then AB by PQ, okay, we are given the ratio will be equal and AM and PN are altitudes. तो अपन कहते हैं, अपन ने प्रूफ किया हुआ है कि अपन की जब एल्टीट्यूड्स में भी सिमिलैरिटी आती है तो सिमिलैरिटी लगती है तो एल्टीट्यूड्स का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल. एल्टीट्यूड्स या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर मीडियन, इनका रेशियो किसके बराबर होता है, अपनी साइड के बराबर होता है. ये अपन ने एक थ्योरम में पढ़ा है. ओके, नाउ ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपन को गिवन है 4/9. तो ए बी बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4/9. इट विल बी 2/3 and it will be equal to this am by pn. So am and pn will be ratio of d by will be option D. Answer will be 2:3. Next, 2 sin square beta minus cos square beta is equals to 2. Okay, now let me write 2 sin square beta minus cos square beta को अपन लिख लेते हैं 1 minus sin square beta. As we know, identity, what is identity? Sin square beta plus cos square beta is equals to 1. This is my identity. Now by solving this I can say minus minus will be get plus 3 sin square beta is equals to 3. Here 1 will be go here. Now 3 to 3 balance, sin square beta is equals to 1. Hence sin beta will be 1. So our angle beta will be 90 degree. Next, prime factors of denominator of the rational number. Okay, we are given a terminating rational number. So the denominator will be 1000. So it is factors of 2 and it has prime factors as 2 and 5. Next, the lines x is equals to a and y is equals to b are, I guess they are intersecting because, for example, x is equals to a, let's say this is point a and this is point b, y is equals to b. So they both are intersecting. Okay, now next, the distance of point A from origin. So distance D is equals to 0 minus 5 0 minus minus 5, that is 5 का whole square 25, 0 minus 6 का whole square 36. So I will get root of 61. Hence D is my correct answer. Next, if A square is equals to 23/25, then A is, so A will be root of 23 divided by 5. It will be irrational. Root of S23 is an irrational number. Root of 23 is an irrational number, sorry there. Now LCM of x and 18 is 36 and x 18 का HCF 2 दिया हुआ है. So as we know, x into 18, product of two numbers, product of both numbers is equals to LCM into HCF. 2 into 36. So balance किया तो x की वैल्यू आ गई 4.
hence C is my correct answer. Now in triangle ABC right angled at B एंगल A is equals to रूट थ्री, तो एंगल A आपको मिल जाएगा, एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 60 डिग्रीज, एंगल A की क्या वैल्यू जाएगी आपके पास 60 डिग्रीज। सो एंड एंगल B आपको गिवन है 90 डिग्रीज, तो एंगल C आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ cos A फिर cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 माइनस cos 30 माइनस sin 60 into sin 30. Okay, cos 60 is half, cos 30 is root 3 by 2 minus sin 60 is root 3 by 2 and sin 30 is half. So they both are equal, hence answer will be 0. Hence B is my correct answer. Next one. Now 14th question. If angles of triangle ABC are in ratio 1 is to 1 is to 2, means let's say x plus 2x is equals to 180 degree, then 4x is equals to 180 degrees and x is equals to 45 degrees. So my two angles are 45 degree each and one angle is 90 degree. So we are given that largest angle being angle C. So this is angle C and let's say this is A and B. Now sec of A minus cosec of B minus tan of A minus cot of B. We need to find the value of this. Sec of A, let's say sec of 45 is root 2 and sec of B will, cosec of B will be also root 2, 45 degree each. Tan of A, tan of 1, 45 degree will be 1 and cot of B, 45 degree will be also 1. So this is 1 minus 1, that means it's 0. Hence A option is my correct answer. Now 15th. A number of revolutions made by the circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance. Now number of revolutions I need to find. It's a very easy question. So number of revolutions n is n के लेते हैं is equals to 176 meter divided by circumference, and we know that circumference कितनी होगी 2 into pi 22 by 7 into r. ऊपर भेज देंगे 7 से बैलेंस, 2 से बैलेंस, इसको मैं 10 रहने देता हूँ साइड में ताकि कैलकुलेशन में कोई इजी रहे मेरे को. दिस विल बी 88, 22 से बैलेंस किया तो 4, सो n की वैल्यू आएगी 4 into 10 that is 40 revolutions. Hence D will be my correct answer. Now 16th. अब अपन ने सिमिलरिटी में पढ़ा था कि अगर पेरीमीटर हो या फिर एल्टीट्यूड वगैरह इन सब का जो रेशियो होता है ना वो साइड के रेशियो के बराबर ही होता है. So A, B, B, C and CA are given to me and EF is also given. Now I can say AB by DE or BC by EF or AC by DF. Okay, so BC by EF is equals to perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF is equals to, ठीक है. Now perimeter of triangle ABC क्या होगा 3 plus 2 plus 2.5 divide by perimeter of triangle DEF. It will be equal to BC by EF. BC is 2 and EF is 4. So this is half. So perimeter of triangle DEF will be 3 plus 2 5, 5 plus 2.5 7.5 into 2 will be 15 centimeter. Hence B will be my correct answer. Now 17th. In the figure, if DE is parallel to BC and in this D is parallel to BC, so angle B is equals to angle D and angle E is equals to angle C. Now angle A is common in triangle ADE. Triangle ADE is similar to triangle ABC by A similarity. ठीक है, इससे मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया इन दोनों को. नाउ AD BD BC are given to me
I need to find out DE. So I can say AD by AB is equals to DE by BC. AD is given to me as 3. AB I can write 3 plus BD, that is 3 plus 4, 7. DE I need to find out, and BC is given to me 14. So 7 balancing out 14 by 2. DE will give me as 6 centimeter. Hence B will be my correct answer. Now let's move on to next one. 410 beta is equals to 3. I can write it as 10 beta को मैं लिख सकता हूँ sin beta upon cos beta is equals to 3. 4 sin beta is equals to 3 cos beta. Now you can clearly see here 4 sin beta minus 3 cos beta, it will be giving me 0. So if numerator is 0, then my whole answer is 0. Now the equation of pair dependent on linear equation. Now it is saying that it is dependent. I need to find out a dependent equation. So let's say for dependent equations I will be multiplying. Okay, I can see here 10x and here 5x, so it is multiplying by 2. If I multiply it by 2, then I will get minus 5 minus 5x 7y. Okay, it is minus 2 इधर ले आता हूँ और n equals to 0 कर दिया. Now it will give me minus 10x plus 14y minus 4 is equals to 0. Now here all signs are plus, so I am multiplying it by minus. Okay, so 10x minus 14y plus 4 is equals to 0. So 10x minus 14y, and if 4 को इधर मैं भेज देता हूँ इस 4 को, तो minus 4 हो जाएगा. Hence D will be my D will be my correct answer. Okay, alright, let's move on to next one. A letter of an English alphabet is chosen at random. What is the probability that letter is from the word mathematics? Okay, so number of letters, alphabets, I need to find out in mathematics word. M, A, T, H, E. M is again common and A is again common, T is again common, I, C, S. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 अल्फाबेट्स हैं. अब कोई जो अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में से यूज किया हुआ वो मैथमेटिक्स का हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है 8/26, that is 4/13. Hence A is my correct answer. So by this time we have completed a section A of this, and so you can go through it once again. It's a really easy section. It was a really easy section, and you need to do only 16 questions in final paper, but for practice you should do all the questions. Now let's jump to section B, which again consists of 20 questions of 1 mark each. Any 16 questions are to be attempted in them. So let's begin with the next question. Okay, so now let's see this question. Question number 21. If sum of two numbers is 12, 15 and their HCF is given to me as 81. HCF क्या होता है? Highest common factor. So I can write the two numbers as 81x or 81y. Then the possible number of pairs of such numbers are. So I can say 81x plus 81y is equals to 1215. अब देखो किसी को अगर ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जो कि उनका फैक्टर है, तो उस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दैट फैक्टर इनटू सम नंबर. तो 81x मैंने ऐसे लिख दिया. नाउ x प्लस y क्या होगा? 1215 डिवाइड बाय 81. सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 9, तो 1 3 बचेगा. सो इट विल बी 31, so 3. Now 27 45 135. Now again balancing key, so 1 and 45, that is 15. So x and y will be giving me as 15. Now you should know that x and y जो होंगे ना वो क्या होंगे? कोप्राइम्स होंगे. वो क्या होंगे? कोप्राइम्स होंगे. ओके, सो सम ऑफ टू कोप्राइम्स given as 15. तो 1
अब 14 दोनों को प्राइम होंगे. Similarly 2 and 13, 3 and 12, no, they are not co-primes. 4 and 11, 5 and 10, not co-primes. 7, 6 and 9 are again not co-primes, so 7 and 8. So total 4 pairs are possible of co-primes, and answer will be C. Okay, now this one. Given below is the graph representing of two linear equations by lines A, B and CD. This is line AB and this is line CD. What is the area of triangle formed by these lines and line x equals to 0? X coordinate equals to 0 means this one. So the triangle is this. Alright, so we can say C point क्या है 2, 2, and this point is okay. So this length we can say it is 4 and here 2. So total overall length is 6 and height is 2. So area will be half into 6 into 2. Area will be 6 square units. Hence it will be C. Now if tan alpha plus cot alpha is equals to 2. Now okay, देखो 2 है तो अब tan alpha क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 होता है. cot alpha भी क्या होता है 1 होगा, तब जाके ये दोनों केस पॉसिबल है. यानी अल्फा क्या हो गया आपके पास 45 डिग्री. And if tan alpha and cot alpha are 1, तो tan की power 20 alpha will be 1 again, and cot की power 20 alpha will be 1 again, as 1 की power 20 is 1. So my answer will be 22 only. Hence B will be my correct answer. So a logical thinking based question कि आपको सिर्फ एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी और ध्यान रखना था कि वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती है. सो tan alpha में होती है मिनिमम वैल्यू 1 होती है. तो अल्फा अल्फा दोनों एंगल सेम है, तो बस थोड़ा सा सोचना था. नेक्स्ट, अब अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप कैसे करोगे इसको, देखो मैं बता देता हूँ. शॉर्ट ट्रिक है. 1/10 अल्फा आपके पास 1 ही आएगा आंसर, इज इक्वल्स टू 2. एलसीएम लोगे 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इधर आएगा. 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसको आप लिख सकते हो tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो tan अल्फा आपके पास आ जाएगा 1. यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी. इससे बढ़िया जस्ट अज्यूम करो ना, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. x प्लस वाई की वैल्यू निकालने, दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा. दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड किया है तो मेरे को क्या मिलेगा, 8 4 3 x प्लस सिमिलरली इधर भी 217 प्लस 131 है तो 3 4 8 8 y 827 प्लस 913. इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये 40 होगा और 9 प्लस 8 होता है 70. सो 348 x प्लस वाई कॉमन ले लिया, इसको मैं बैलेंस करूंगा तो ये कितना जाएगा 5 टाइम्स होगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. हेंस ए इज माई करेक्ट आंसर. 24 का आंसर क्या आ गया, ए. नाउ एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q. एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q is 221. so p और q का एलसीएम मेरे को 221 दिया हुआ है. यानी अब जो अपना एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज p and q, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p minus 1. अब एलसीएम जो होता है दो प्राइम नंबर का क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा. एलसीएम क्या होगा 221 क्या होगा p इंटू q. प्राइम नंबर. अब 221 क्या है, 221 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 इंटू 70. 13 इंटू 70. सो p मेरे को दिया हुआ है ग्रेटर है तो p की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 70 एंड q की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 13. दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा निकलता है दोनों, उन दोनों का प्रोडक्ट करने से, क्योंकि उनके प्राइम नंबर्स एलसीएम में क्या प्राइम कैसे लिखते हैं नंबर्स को, प्राइम नंबर के फॉर्म में. जो हाईएस्ट पावर होती है वो, तो हाईएस्ट पावर वो प्राइम नंबर की वही होगी. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. नाउ कैसे, मतलब मान लो अगर मेरे पास 8 है तो मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ. अब यहाँ पे p है प्राइम नंबर तो p लिखूंगा मैं उसको, एंड q है तो q लिखूंगा. प्राइम नंबर है दोनों, तो दोनों का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा p इंटू q, उनका एलसीएम हो जाएगा. सो नाउ 3p माइनस q लिखना है तो 3 इंटू p लिखा मैंने तो कितना होगा 70 इंटू 351 माइनस 13.
क्या आएगा आंसर? 38. C will be my correct answer. Next, a card is drawn from a well shuffled decks of cards. What is the probability that card drawn is neither knight, neither king or a queen? अब देखो कितने किंग होते हैं? 4. क्वीन कितनी होती है? 4. सो इन दोनों में से छोड़ के कुछ भी होना चाहिए, है ना? तो 8 पत्ते तो हटा दो. 52 minus 8 डिवाइड बाय 52. Hence probability हो जाएगी 44 by 52. That means 22 by 6, 26, 11 by 13. 11 by 13. Hence A is my correct answer. Now, two fair dice are rolled simultaneously. Probability that 5 will come up at least once. तो 5 at least वन आना चाहिए. कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये 2 बार काउंट नहीं करना है. तो टोटल कितने केसेस हो गए? 11 upon 36, which means B is my correct answer. Now, अब अगर ये बिना टेबल के काउंट करने जाओगे तो आप 6 और 6 करके 12 कर दोगे. सेम केसेस 5/5 वाला केस भूल जाओगे. नाउ इसमें देखो गलती जो होती है उधर मैंने बता दी. 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. अब अपन को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1. तो 1 को मैं इसके जरिए रिप्लेस कर दूंगा. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा. देखो क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा. नाउ 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब मैं इसको साइन 3 माइनस 3 को देखो इस कैसे लिख रहा हूँ. 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. ऐसे लिख दिया. क्या किया? सिंपल ऐड था वो -3 था तो -2 और -1 में लिख दिया. नाउ इधर से अब 2 साइन अल्फा कॉमन ले लूंगा. ये क्या बचेगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा. अब इधर से मैं माइनस कॉस अल्फा कॉमन ले लूंगा. तो क्या होगा? ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा. ठीक है. इज इक्वल टू 0. नाउ 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? एक बार तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. तो क्या हो गया? कॉट अल्फा कितना हो गया? 1 हो गया. एक बार क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. तो साइन को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2. तो 1 और 2 मेरे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे. तो 28 का क्या आंसर आ गया मेरे पास? 28 का आंसर आ गया मेरे पास सी. ओके. नाउ द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर दिस. अब मेरे को एक्स और वाई के वैल्यू निकालने. तो अब देखो कैसे निकालेंगे. तो जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी will be equal, midpoint of A and C will be equal to midpoint of B comma D. So 1 plus x by 2 comma 2 plus 6 by 2 equals to 4 plus 3 by 2 comma y plus 5 by 2. तो ये बैलेंस कर दो सारे टूस. इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को. तो x plus 1 is equals to 7 और 8 is equals to y plus 5. तो y की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 6. ठीक है. तो क्या हो गया आपके पास आंसर? 6,3. 29 का आंसर हो गया आपके पास ए. नाउ अब अपन चलते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30th. इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी, दिस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए एंड एंगल ए इज कॉमन. ठीक है. तो देखो इन ट्राइंगल ए सी बी and triangle
A ACB is given to angle ADC. Okay, ADC. तो angle A is equal to angle A, and angle ADC is equals to angle ACB. दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय A. Triangle ACB is similar to triangle ADC. So I can write AC by AD is equals to BC by CD is equals to AB by AC. We need to find out what is BD, which is X. कह देता हूं मैं BD को, ठीक है. अब AC गिवन है, AD गिवन है, तो AC को लिख लिया 8/3 और AB जहां पर आ रहा है अपने पास, AB इधर आ रहा है. AC अपन को पता है कितना है, 8 है, और AB मेरे को पता है कितना है, x + 3 है, ठीक है. 8 × 8 64/3 -3 इज इक्वल्स टू x. तो 9 माइनस करूंगा तो 55/3 इज इक्वल्स टू x. आंसर क्या आ गया, 55/3. C इज माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 31. The equation of a perpendicular bisector of line segment joining points A, B. So perpendicular bisector की इक्वेशन निकालनी है अपन को. तो P कैसे निकलेगी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, वो इक्वी डिस्टेंस होगा A और B पॉइंट से. तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. ओके, स्क्वायर किया मतलब स्क्वायर किया तो रूट हट गए, तो इनको और खोला इनको, तो -8x + 16 y स्क्वायर - 10y + 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर + 4x + 4 + y स्क्वायर - 6y + 9 x स्क्वायर y स्क्वायर बैलेंस. अब -8x को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 12x. -10y को इधर लेके आया तो +10y + 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब 4 इधर लेके 12 माइनस कर दिया, एंड सिमिलरली 12 में से 9 में माइनस कर दिया तो ये मेरे पास इधर हो जाएगा 28. नाउ इसको मैं कर देता हूँ 4 से डिवाइड, 3x + y इज इक्वल्स टू 7. I can also write as 3x + y - 7 is equals to 0. Hence D is my correct answer. Next 32. In the following figure, D is midpoint of side BC. Then I need to find out cot y and cot x. So सबसे पहले cot y आपको दिया हुआ है, बड़ा एंगल है cot y. cot y क्या होगा, AC, ये डिग्री है, AC बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, AC बाय BC हो जाएगा. एंड cot x क्या हो जाएगा, CD AC बाय CD. BC को मैं लिख सकता हूँ 2 times of CD. Okay, so I can write cot y is equals to half into cot x. ठीक है, cot x को इधर लेके गए, cot y डिग्री बाय cot x डिग्री इज हाफ. 32 का आंसर क्या हो गया, B हो गया. Next 33. The smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal. तो 1/13 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसका, देखो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए 100 तो चाहिए, और ऊपर 13 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस आउट हो गया, तो कितना आएगा आंसर मेरे पास, 0.01. सो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे मेरे को मल्टीप्लाई करना चाहिए. Hence A will be my correct answer. Sides AB and BE of a right angle triangle are given to me. Now I need to find the length of the largest square FGBD. Okay, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये A है मेरी साइड. क्या है मेरी साइड, A है ये. Now अब FD जो है वो पैरेलल होगी BE के. So I can say this angle is equals to this angle. This angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. So I can say triangle AFD is similar to triangle DGE.
यानी ए एफ क्या हो गया मेरे पास, ए एफ बाय एफ डी, ए एफ, ओके, ए एफ बाय डी जी इज इक्वल्स टू एफ डी बाय जी ए। ए एफ कितना हो गया मेरे पास 16 माइनस, ये कितना हो गया 16 माइनस ए, 16 माइनस ए, डी जी क्या हो गया ए, एंड एफ डी क्या हो गया ए, एंड जी ई क्या हो गया 8 माइनस ए, जी ई क्या हो गया 8 माइनस ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस ए इंटू 8 माइनस ए स्क्वायर ए। ओके, सो ए स्क्वायर, अब ये 16 इंटू 8 क्या होगा मेरे पास, 16 इंटू 8 हो जाएगा 64 128 माइनस 24 ए प्लस ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बैलेंस, सो 24 ए इज इक्वल्स टू 128 होगा, सॉरी ये 128। नाउ ए की वैल्यू क्या हो गई 128 by 24, 12, and this will be given me as 64. Now again balancing 6 for 32, so it will be, a will be 16 by 3 centimeter, so maximum length हो गई अपने पास 16 by 3 meter. Next 35. Now we are given with point R and S minus 1 comma 3 and 9 comma 8 इन रेशियो, इट्स डिवाइडेड, पॉइंट पी डिवाइड्स, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होंगे 9k माइनस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 3 डिवाइड बाई के प्लस 1, ओके, k इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन डिवाइड बाई के प्लस 1। सो नाउ अब सेटिस्फाई करा देते हैं 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट क्या होगा k माइनस 4 k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 को उधर भेज देंगे, ये एलसीएम हो गया टोटल, k की वैल्यू क्या हो गई 2 by 3, so a will be my correct answer. Now in this we need to find out the figure of area of the following the shaded region. सो स्क्वायर की मेरे को साइड दी हुई है 14, अब जो रेडियस होगी इस सेमी सर्कल की, जो रेडियस होगी वो हो जाएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब देखो एरिया जो है ना वो क्या है, सो एरिया विल बी एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कह लो इसको, क्या होगा ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ, अभी दो क्वाड्रिल 1/4 ऑफ सर्कल है, क्वाड सर्कल्स हैं, तो इनको मैं क्या कह लूंगा सेमी सर्कल का कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। सो अपने पास बचेगा क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो दोनों बैलेंस हो गए है ना। अब बचा क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 7 इंटू 14, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन हमेशा लास्ट के लिए लेके जाओ, तो 7 इंटू 14 ही करना पड़ा, पहले सेमी सर्कल का निकाल लेते फिर इधर निकालते, तो मतलब डबल मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा मेरे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी इजी, मतलब हाँ थोड़ा डर लग रहा था क्वेश्चन को देख के कि हो जाए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट मतलब कैंसिलेशन हो गया इजीली, अगर अपन ने कंसेप्ट को ध्यान रखा तो इजी पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ओके क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। आपको ये जो रिंग्स दी हुई है ना ओलंपिक की, इनका रेडियस जो है ना, मैं टच कर रहा हूँ तो ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और ये एक लाइन दिख रही है आपको बायरिक सी, ये लाइन ये भी आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है ना, ये एरिया जो है ये दोनों रिंग्स मिला के एनक्लोज कर रही है, जो मैंने शेड किया है वो अपन को निकालना है। तो अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इरेज कर दिया, सारा क्लियर दिखे, ताकि देखो ये जो एरिया है ना
वो लाइन के ऊपर और रिंग, येलो रिंग के नीचे वाला ये जो कर्सर लेजर पॉइंटर से मैं कवर अप कर रहा हूँ, ये एरिया अपन को निकालना है। तो ये क्या है, एक एरिया, ये सेक्टर का एरिया है। अब इसके नीचे वाला भी सेक्टर का एरिया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर हो जाएंगे। तो मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ और 8 एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूँ, सेक्टर गलत बोल रहा था सॉरी, और 8 से मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें अगर सबसे पहले अपन, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये ध्यान रखना, वन तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22 बाय, ओके पाई में आंसर है तो मैं पाई को छेड़ दे रहा हूँ, पाई इंटू 1 माइनस एरिया ऑफ क्या होता है, √3/4 a² दैट इज 1। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 6 माइनस √3/4। इजी, ये तो आपका हो गया सेगमेंट का एरिया। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो कितना है, 8 इंटू दैट सेगमेंट एरिया विच इज पाई बाय 6 माइनस √3/4। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ऊपर, 4 पाई बाय 3 माइनस 2√3। तो आप देखते हैं क्या आंसर अपना नीचे दिया हुआ है। तो 8 इंटू √3/4, ये अपना डी आंसर हो गया, मतलब बिल्कुल एज इट इज लिखा ही हुआ है इसको, पाई बाय 6 माइनस √3। ओके, इजी वन, आया समझ में। नेक्स्ट, if 2.5 are zeros of them, then find the value of p and r. So sum of roots 2 plus half is minus 5 by p. It will give me 5 by 2 minus 5 by p. बैलेंस p की वैल्यू आ गई अपने पास -2। नाउ देयर प्रोडक्ट 2 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू r बाय p। क्या हो गया, r की वैल्यू हो गई p के बराबर, 2 से 2 बैलेंस, तो r क्या है, p क्या है -2, तो r भी क्या हो गया -2 माइनस p इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू -2। 38 का आंसर हो गया b। नेक्स्ट 39, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस द साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो ये सर्कल बनाया और इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया है, एक स्क्वायर डाल दिया है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो होता है a√2, यानी अगर a साइड है इसकी, a√2 होगा, a√2 विल बी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो साइड क्या हो गई, ये √2 से बैलेंस हुआ और √2r हो गई। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ऑलराइट, 2πr इज इक्वल्स टू 100। r की वैल्यू क्या हो गई, 50 बाय पाई, a की वैल्यू क्या हो गई, 50√2 बाय पाई, हेंस c is my correct answer. Now number of solutions, okay, let's see। 3x plus y, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 होता है 243, so x plus y is equals to 5। now this 3 की पावर 5 into x minus y is equals to 3 की पावर 1, तो क्या हो गया, 5x minus 5y is equals to 1। अब अगर मैं इनको क्या करने जाऊं, सॉल्व करने जाता हूं, तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो सिंपली 1/5 इज इक्वल्स टू 1/-5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन बी आल्सो। और अब अपन करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन बी बहुत ही इजी था। सेक्शन सी जो है वो अपना केस स्टडी बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में अपन ने देखा था कि अगर अपन सेक्शन सी की केस स्टडीज को अगर अपन नहीं भी रीड आउट कर रहे हैं, तो मतलब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, तो वो क्वेश्चन केस स्टडी के जो थे वो बहुत इजी थे। सबसे पहली बात ध्यान रखने की ये है कि देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस, 1 मार्क ईच अगेन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी केस स्टडी 1। अब जो इधर केस स्टडी है वो मैंने पहले से पढ़ी हुई है, तो मेरा जो एनालिसिस है कि केस स्टडी आप लोगों को स्टैंडर्ड पेपर में एटलीस्ट आप लोगों को केस स्टडी का क्वेश्चन क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। ओके,
तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा आप लोगों को कि समझ में आएगा, क्योंकि केस स्टडी में जो ये आपको दिया हुआ है वो बेस्ड है। बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर आप लोग वीडियो देखोगे जाके अगर, तो उसमें केस स्टडी की ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन था ना वो रीड करने की जरूरत नहीं थी। तो लेकिन इसमें अपन को जरूरत है, तो अपन इसको रीड आउट करते हैं सबसे पहले। द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। ओके, एक जंप कर रहा है डाइवर स्विम उससे, डाइविंग बोर्ड से। व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट्स अ पैराबोला, पैराबोला शेप में, पैराबोलिक शेप में है ये जो आप देख रहे हैं शेप, इसको पैराबोलिक कहते हैं। ठीक है। एनी वो स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड विच इज 48 फीट हाइट अबव। देखो ये वाटर की लेवल है, अब ये जो हाइट पे है ना 48 फीट हाइट पे है, ठीक है। अब उसकी हाइट अबव द वाटर लेवल यहाँ से, जो कि टाइम टी पे, कोई टाइम टी पे, वो डिपेंड कर रही है पॉलिनोमियल एच टी पे, पॉलिनोमियल एच टी पे, इस पॉलिनोमियल पे। ठीक है। अब अपन को पूछा है के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। नाउ अपन को पता है कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे वो कितनी हाइट पे खड़ी थी, उसकी हाइट कितनी थी 48 मीटर्स पानी के ऊपर, बोर्ड पे खड़ी थी, डाइविंग बोर्ड पे। तो एच टी की, एच ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 16 जीरो, देखो पॉलिनोमियल देख लो, याद कर लो, माइनस 16t² प्लस 8t प्लस की, सो 8 इंटू जीरो प्लस की। अब हाइट कितनी थी अपने पास 48 मीटर, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 48। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। तो मेरा एच टी यहाँ पे अपन को देखे तो क्या हो गया, -16t² प्लस 8t प्लस 48। तो ये मेरा फाइनल पॉलिनोमियल हो गया जो कि जंप लेने के टाइम पे हो रहा था। अब अपन को पता करना है एट व्हाट टाइम शी विल टच वाटर। सो वाटर टच करेगी तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो। तो -t² प्लस 8t प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, -8 कॉमन लिया तो 2t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। 2t और 6 का तो -3 और 4, -4t प्लस 3t माइनस 6, ये हो जाएंगे फैक्टर्स। 2t कॉमन लिया, t माइनस 2, यहाँ से मैंने क्या लिया 3 कॉमन लिया तो t माइनस 2 अगेन, 2t प्लस 3 इंटू टी माइनस 2। टी की दो वैल्यूज आ गई टाइम की मेरे पास 2 और -3/2। अब टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड में वो पानी टच कर लेगी। नाउ रीता's हाइट above the water level is given by another polynomial pt। कोई पॉलिनोमियल है pt, उसकी हाइट से दी जाती है, तो उसके जीरोस अपन को दिए हुए हैं -1 और 2। pt पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस करके लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अगर करके भी नहीं लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, k टाइम्स x प्लस 1 और x टाइम पे डिपेंडेंट है, t पे लिखते हैं। इस पे ये वाला पेन लेके देखते हैं, दिख रहा है। pt इज इक्वल्स टू k टाइम्स, कोई भी अपना एक कांस्टेंट होगा, t प्लस 1 t माइनस 2 k t स्क्वायर माइनस t माइनस 2, ये अपने पास हो जाएगा। अब अपने पास एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो जो हाइट है pt की वैल्यू क्या हो जाएगी 48, तो -2k इज इक्वल्स टू 48, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -24। तो pt मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा -24t² प्लस 24t प्लस 48। सो D will be my correct answer. Next, polynomial QT with sum of zeros as 1 and product as -6। तो सिमिलरली अब जो मैं वो बोल रहा था आप लोगों को कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे QT को, QT को मैं लिख सकता हूँ ना k x² माइनस सम ऑफ, तो सम ऑफ क्या दिया हुआ है अपन को 1 दिया हुआ है, तो x बोल दिया एंड 6 सम प्रोडक्ट इनटू वो तो 6। तो अब x की जगह मैं इसको t कर देता हूँ, t² माइनस t माइनस 6, ये मेरा क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, और उससे मैंने QT लिख लिया। अब k की वैल्यू निकालनी है मेरे को, सो अगेन एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, q ऑफ जीरो क्या होगा 48, सो -6k इज 48,
तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास -8। नाउ qt क्या हो जाएगा, -8t² plus 8t plus 48, hence C will be my correct answer. Next, the zeros of polynomial rt are negative of each other. तो दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव है तो दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। सम विल बी 0। तो k -3 -12 इसका नेगेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। Hence A is my correct answer. Now let's move on to case study 2. अब देखो ये केस स्टडी क्या कह रही है, a hockey field is a playing surface for the game of hockey. Okay, ये अपन सबको पता है। Historically the game was played on natural turf, यानी घास पे खेला जाता था। But nowadays एक ये predominantly played हो गया एक आर्टिफिशियल टर्फ पे, आर्टिफिशियल घास पे खेला जाता है ये। इट इज इन रेक्टेंगुलर इन शेप, जो कि 100 यार्ड्स होता है, 100 बाय 60 यार्ड्स का होता है। गोल्स कंसिस्ट होते हैं दो अपराइट पोस्ट प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बैकलाइन। ठीक है, दो अपराइट पोस्ट होते हैं जो कि गोल पे खड़े होते हैं, वो जॉइंड होते हैं बाय टॉप हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार। और इनसाइड एजेस जो पोस्ट के होते हैं वो 3.66 मीटर यानी 4 यार्ड अपार्ट होते हैं। जो लोअर एज होता है वो 7 फीट अपार्ट होता है ग्राउंड से। हर टीम 11 प्लेयर्स की होती है फील्ड में, और गेम इंक्लूड करता है एक गोली का। तो फॉरवर्ड प्लेयर्स जो कि अपन को दिए हुए हैं वो गिवन है ABCD से। मिडफील्डर्स जो है वो EFG है और फुल बैकअप जो है वो HIJ है, और गोली जो है वो अपना K है। ये अपन को इमेज दी हुई है 60 यार्ड 100 यार्ड, और जो अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिया हुआ है यहाँ पे। और HIJ अपने फुल बैकअप से, GEF अपना मिड प्लेयर्स हैं, एंड ABCD आर फॉरवर्ड अटैक, और O अपना O कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट इट गो। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल EHJ। तो सबसे पहले E के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। H के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,4 -2,4। J के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,2। सेंट्रोइड निकालना है, क्या होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3। 2 -2 -2 -2, तो क्या होगा, -2/3 x कोऑर्डिनेट। 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3/3 1। सेंट्रोइड क्या गया, -2,3/1। Hence A is my correct answer. Next, if a player P is needs to be equal distance, अगर equal distance पे होना है प्लेयर P को A और G से, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,6, ये रहा A कोऑर्डिनेट। और G पॉइंट कहाँ गया, G पॉइंट A रहा, तो उसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, -3। अब सच डेट कि A और P तीनों एक ही लाइन में हो और उसको इक्वी डिस्टेंस पे होना है। तो P पॉइंट क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया। P इज मिड पॉइंट A और G का। ठीक है, एक ही लाइन में है तो P क्या हो जाएगा, 3 + 1/2, 6 - 3/2। So 3 + 1 is 4, that is 2, and this is 2, and this is will be 3/2. So this is P, 2, 3/2 C। 47 का आंसर हो गया मेरे पास C। Now 48, point on x-axis equidistance from I and E। E ये है, I ये है। I पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,1, एंड E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1। वी नीड टू फाइंड आउट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस जो कि 0 है, तो पॉइंट को बोल देते हैं x, 0। नाउ x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर + 1। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 से 1 बैलेंस हो जाएगा, एंड x + 1 x² + 2x + 1 इज इक्वल्स टू x² - 4x + 4। x² से x² बैलेंस, ये क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। सो हाफ, 0 वो पॉइंट होगा अपना जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा I और E से।
सिमिलरली अब यहाँ पे आपको नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेयर Q such that his distance from K is twice his distance from E. K, Q और E जो है वो कोलिनियर दिए हुए हैं मेरे को, क्या है, एक ही लाइन पे है। तो देखो क्या है ना, Q पॉइंट निकालना है, K और E। K का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, -4,1 और E का कोऑर्डिनेट है 2,1। नाउ पॉइंट Q क्या है, वो K से इतने डिस्टेंस पे है जो कि डिस्टेंस है E और ओके ये डिस्टेंस अगर उसका सॉरी ये डिस्टेंस अगर उसका x है तो K से 2x डिस्टेंस पे, यानी 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे को इधर Q के। तो अब देखो कोलिनियर है तो y कोऑर्डिनेट तो मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अब मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 × 2 4 एंड 1 × -4, ये 0 हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 0,1। हेंस बी इज माई करेक्ट आंसर। अब 1 जैसे मैंने निकाला वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 × 1 तो 2, 1 × 1 1, डिवाइड बाई 3 करते आंसर 1 ही आना था। तो लॉजिक यूज करो, कैलकुलेशन से बेटर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C। B के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, B के कोऑर्डिनेट है 4,3 एंड C के कोऑर्डिनेट है अपने पास -1,4, नो सॉरी 4,-1। ओके अब x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, अपन को निकालना क्या है, ये ऐसा पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस हो B और C से, y एक्सिस पे होना चाहिए। नाउ देखो क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए तो y 0, y ले लेते हैं। तो 4 16 y -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया 4 16, तो y + 1 का होल स्क्वायर। अब तुमको ये समझ आ नहीं रहा होगा तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ एक बार। 4, -1, अब स्क्वायर किया तो 16 to 16 बैलेंस हो जाएगा, ये अंडर रूट्स बैलेंस हो गए। y² - 6y + 9 इज इक्वल्स टू y² + 2y + 1। y² से y² बैलेंस, ये क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो 8 + 8y, y की वैल्यू आ गई 1। अब देखो अगर आप देखते ना तो 3 और -1 को अगर अपन का वो लेते मिड टर्म तो भी अपना आंसर आ जाता, मतलब y की वैल्यू निकालनी थी सिर्फ अपन को, तो 0,1, हेंस D विल बी माय करेक्ट आंसर। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी कि सिर्फ मिड पॉइंट देख लो कौन सा आना था। नाउ थैंक यू गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, अगर अपन चाहें तो देखो ये तो पूछ नहीं सकता मैं, अभी लाइव नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के लिए ये रहा, ज्वाइन कर सकते हो ऐसे टैग करके राइट अभी, या फिर ये लिंक है इस पे जाके। इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, QR कोड है, यूजर नेम एक्साइटोनियम है, जाके इस पे फॉलो कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है मैंने इधर। ओके सो इधर दोनों तरफ आप इंटरेक्ट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Okay, so thank you guys for joining in, and that's it from my side. Thank you and have a great day. So tada bye, see ya, and best of luck for your exams. This is it from my side. Tada bye, see ya, have a great day guys. Bye guys.